Friends, welcome to the platform of Value Talks, wherein we are trying to educate, we give our views, our education to friends on health, wealth, and property and issues of which concern to most of the people in today's life. And we are trying to share our experiences of our board, our experts on panel. We are also on YouTube, and we are trying to conduct daily talks. Today's topic of our discussion is the term insurance, and our expert today is Mr. Jitender Chaudhary, who is a financial professional with 17 years of experience. He is the head wealth management in Olive Green Consultants of Gurgaon, and he has done his MBA in finance and marketing from UP Technical University, Lucknow, and he is well qualified person from SEBI registered investment advisor. He is AMFI certified mutual fund distributor, National Stock Exchange certified in financial market and wealth management modules, IRDA registered insurance advisor. He is the goal planning expert and something called QPFP, qualified personal financial professional. So that talks volumes about Jitender at young age. He is very well qualified, and we are thankful that he shall be conducting our talk today. Thank you, Jitender, for coming and sharing your views on the topic of term insurance. Should we go ahead with? Shall I just understand what is term insurance mean actually, and is it actually required to be taken by one and all? Please go ahead. First of all, thank you very much, Colonel Gupta, for the warm introduction. I didn't know I had so many qualifications behind me. So thank you for reminding me. As far as the topic of today goes, term insurance, it's a very interesting topic because these days insurance has become a very important part of everybody's financial planning. Earlier, people used to kind of ignore insurance per se because they used to feel like it's just a waste of money. But now, with the things that has happened in past, people have now become more informed, and it has taken a good space in everybody's financial plan. So, just to start with, term insurance is the most basic and the simplest form of life insurance, wherein the basic idea is to insure the policy holder, and in case any kind of a mishappening happens, then the money or the sum assured is paid to the beneficiary or the nominee. So it's very simple. अगर कुछ भी होता है पॉलिसी होल्डर को, तो उनके जो भी नॉमिनी हैं, जो भी उनके लीगल हायर हैं, जो उनके बेनिफिशियरी, उनको पैसा कंपनी पे कर देती है. इसके सिंपल होने से बेनिफिट ये होता है कि इसकी कॉस्टिंग बहुत अट्रैक्टिव होती है. पहले लोग क्या करते थे कि इन्वेस्टमेंट तो करते थे इंश्योरेंस के अंदर, बट उनका बेसिक आइडिया होता था इन्वेस्टमेंट रादर देन कवरिंग देमसेल्व्स. मतलब इंश्योरेंस कम, इन्वेस्टमेंट ज्यादा पर्सपेक्टिव हुआ करता था. तो हमारे भी पेरेंट्स ने, उनके पेरेंट्स ने भी LIC की पॉलिसीज ली हैं, बट विद द पर्सपेक्टिव के या तो मनी बैक मिल जाए या फिर कुछ समय के बाद 5, 10, 15, 20 साल के बाद एक कॉर्पस इकट्ठा हो जाए. वो जनरली मतलब इंश्योरेंस इस पर्सपेक्टिव से नहीं लेते थे कि अगर उनको कुछ हो गया तो उनकी फैमिली को एक सब्सटैंशियल सा अमाउंट मिल जाए, जो कि आजकल लोग काफी अवेयर हो गए हैं और उन्होंने इंश्योरेंस को इस तरीके से देखना शुरू कर दिया है कि अगर मैं नहीं रहा तो मेरी फैमिली का क्या होगा. उस सवाल का जवाब है टर्म इंश्योरेंस. तो जैसे आपने पूछा टर्म इंश्योरेंस क्या है, तो बड़ा बेसिक सा वेनिला प्रोडक्ट है, जिसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है. सिंपल सा कंपनी कहती है आप हमें प्रीमियम दो और एक पर्टिकुलर टेन्योर के लिए, उस टेन्योर के बीच में आपको कभी भी कुछ होगा तो हम आपकी फैमिली को सिक्योर करेंगे फाइनेंशियली विद दैट सम एश्योर्ड जो भी आपने हमसे खरीदा है. ये जो अभी आप दूसरा एक्सप्लेन कर रहे थे बीच में कि इन्वेस्टमेंट लिंक, वो टर्मिनोलॉजी कुछ 5-10 साल पहले का क्वाइट फेमस हो गया था. उसको आई थिंक यूलिप वाज द शॉर्ट टर्म, राइट?
से यूलिप भी होते थे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एंडाउमेंट्स होते थे, मनी बैक पॉलिसीज होती थी, होल लाइफ पॉलिसीज होती थी। तो काफी तरीके के प्रोडक्ट मार्केट में मार्केट किए जाते थे, लोगों को बेचे जाते थे एजेंट्स के द्वारा, ये कह के कि हम आपको इंश्योरेंस देते, बट एक्चुअली में इंश्योरेंस बहुत कम होता था। तो अगर कोई भी मिसहैपनिंग होती थी फैमिली के अंदर तो बहुत बड़ा सम एश्योर्ड नहीं मिलता था फैमिली को। तो अगर मैं बेसिक से आपको समझाने की कोशिश करूं तो मान लीजिए किसी ने 5 लाख की पॉलिसी ली है, मतलब 5 लाख इज दी सम एश्योर्ड, उसका मोटा मोटा प्रीमियम जाता था 25 से 30 हजार पे। और उस 25 से 30 हजार को अगले 20 साल देने के बावजूद भी जो सम एश्योर्ड था वो सिर्फ 5 लाख रुपए था। तो अगर कोई मिसहैपनिंग होती थी तो फैमिली को सिर्फ 5 लाख रुपए मिलते थे। तो 5 लाख रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। तो आगे के सर्वाइवल के लिए फैमिली को अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए 5, 7, 10 लाख रुपए में कुछ नहीं होता है। वहीं अगर आप टर्म इंश्योरेंस की बात करें तो सिमिलर प्रीमियम में, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट एडेड नहीं है और कॉस्टिंग बहुत एफिशिएंट है, तो 20-25 हजार रुपए के अंदर लोगों को, डिपेंडिंग ऑन द एज, दे कैन गेट अ सम एश्योर्ड फ्रॉम 75 lakhs to 1.5 करोड़। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन द सम एश्योर्ड। तो अगर आपका सवाल है इंश्योरेंस से कि मेरे ना होने पे मेरी फैमिली का क्या होगा, तो उसका जवाब है टर्म इंश्योरेंस, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव होती है और एक अच्छा बड़ा सम एश्योर्ड आपको देके जाती है, जिससे कि अगर कोई भी मिसहैपनिंग होगी फैमिली में, मतलब जो पॉलिसी होल्डर है उनके साथ, तो फैमिली सिक्योर्ड होती है फाइनेंशियली। तो इसी को अगर हम समझें कि जैसे अगर आज की डेट में अगर आपने टर्म इंश्योरेंस, सो यू विल से दैट टर्म इंश्योरेंस इज द वन बेस्ट मेथड इफ यू रियली वांट टू सिक्योर योर फैमिली इन अ लॉन्ग रन व्हेन यू आर नॉट देयर. It is, sir. It is, in fact, especially for those people who have limited resources, जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम लिमिटेड है, जिनके पास एसेट्स अभी उतनी नहीं है कि वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सके। सो जहाँ पे आपके ऊपर सोशल कमिटमेंट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, और आपको पता है कि मेरे पास उतनी अर्निंग और उतनी एसेट्स नहीं है कि मेरे बाद मेरी फैमिली सर्वाइव कर सके, तो उसके लिए सबसे अच्छा और कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है टर्म इंश्योरेंस लेना। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर किसी को टर्म इंश्योरेंस लेनी चाहिए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर नीड। तो ऐसा हो सकता है कि कोई इंडिविजुअल है, उनकी अर्निंग्स बहुत अच्छी है, उन्होंने एसेट्स बहुत क्रिएट कर रखी हैं, जमीन भी है, जायदाद भी है, इनहेरिटेंस में भी बहुत कुछ मिला हुआ है, और वो आज की डेट में इतना सब्सटेंशियल सा रिसोर्सेज क्रिएट करके बैठे हैं कि उनके ना होने पर ऑब्वियसली बात है, इमोशनल लॉस का कोई ऑल्टरनेट नहीं है, बट फाइनेंशियली वो बहुत सिक्योर्ड है। तो उस केस में हो सकता है उनको टर्म इंश्योरेंस की जरूरत ना पड़े। कोई ऐसे इंडिविजुअल है जिनकी अभी फैमिली प्लानिंग नहीं हुई है, मतलब शादी नहीं हुई है, अभी सिंगल है, उनके ऊपर कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई लाइबिलिटी नहीं है, किसी का देना नहीं है, किसी का लेना नहीं है, तो उनको भी टर्म इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। समवन हु इज एट द एज ऑफ रिटायरमेंट, मतलब सब कुछ अपनी लाइफ में कमिटमेंट सेटल कर चुके हैं, लोन्स वगैरह सारे पेड ऑफ है, अब आज की डेट में सिर्फ उनका जो अगला माइलस्टोन है वो रिटायरमेंट है, जो कि अगले कुछ सालों में या ऑलरेडी आ चुका है। तो उनके लिए भी टर्म इंश्योरेंस का उतना बड़ा नीड नहीं है, डिपेंड करता है कि उनके ऊपर कमिटमेंट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या बची हैं। अगर सोशल कमिटमेंट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, तो ऑब्वियसली बात है आपको अपने आप को सिक्योर करके चलना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि उनके ना होने पर वो बर्डन जो है फैमिली के ऊपर ट्रांसफर हो जाए। बिल्कुल. Can I qualify this by saying that your term insurance is probably directly proportionate to your dependency? How much your people or your next generation or your parents or your children are dependent on you, that much is the more need for term insurance. Is that right? Right? No, absolutely, sir. And adding to that, your liabilities, your loans, your car loans, your home loans, your other liabilities which you have to pay off. I would not like my family to pay my liabilities in case I'm not there. I would like to settle it if I'm not there. So it should be automatically settled. वो बर्डन उनके ऊपर नहीं आना चाहिए, तो उसको भी कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए टर्म इंश्योरेंस इज अ गुड टूल टू हैव। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन अ इंडिविजुअल और फैमिलीज रिक्वायरमेंट। उनकी क्या क्या एस्पिरेशंस है लाइफ में, आगे फ्यूचर को लेके उनकी क्या क्या लाइबिलिटीज है, उनका आज की डेट में लाइफस्टाइल क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहूंगा मेरी फैमिली मेरे ना होने पर लाइफस्टाइल पे कहीं ना कहीं एक, तो अगर अगर उनका एक स्पेसिफिक खर्चा है हर महीने का, तो वो स्पेसिफिक खर्चा उनके पास होना चाहिए। मैं नहीं चाहूंगा कि अगर वो आज 1 लाख रुपए खर्च करे तो मेरे ना होने पर वो 20 हजार रुपए में अपनी लाइफ को चलाए, जो कि कोई भी नहीं चाहेगा। और मैं अगर उसको कहीं ना कहीं काउंटर कर सकता हूँ एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल प्लानिंग के एक एस्पेक्ट को रख के अपनी लाइफ में, तो मेक सेंस। मतलब
अगर आप इसका टर्म इंश्योरेंस को एग्जैक्टली उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे तो कहीं भी उसकी कॉस्ट जो है उसके बेनिफिट्स को मैच नहीं करती है. कॉस्ट इज लोअर, बेनिफिट्स आर मच मोर. और सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि भगवान ना करे कि ये टर्म इंश्योरेंस कभी भी यूज हो. अगर नहीं यूज होती है, मेरे लिए खर्चा जरूर है, बट एटलीस्ट पीस ऑफ माइंड है कि अगर मैं अगले 20 साल 25 साल 30 साल सर्वाइव कर गया तो मैं ऑब्वियसली बात है कमाई करूंगा, इनकम मेरी होगी, मेरी एसेट्स बिल्ड होंगी. सो ऑब्वियसली दैट्स द बेस्ट केस. बट अगर उन 20 साल या 30 साल के दौरान में मुझे कुछ हो गया तो एटलीस्ट मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग और मेरी फैमिली के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा किसी भी तरीके का. तो इन नटशेल, अगर इंश्योरेंस लेनी है और अपनी डिपेंडेंट्स को सेफ एंड सिक्योर करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट लिंक्ड स्कीम्स को बिल्कुल नहीं देखना चाहिए और आपको सिर्फ वेनिला प्योर इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस लेने में ही फायदा है और उसका प्रीमियम विजावी द सम इंश्योर्ड इज मच बेटर. इज दैट राइट? करेक्ट? राइट, एब्सोल्युटली राइट. नाउ कैन वी जस्ट, अभी अगर हमारे जस्ट मोस्ट ऑफ द लिसनर्स और मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आर फ्रॉम डिफेंस फोर्सेस, and since this value talks is giving more values towards that, I will like to correlate it to the defense audience where we are, well, it is mandatory to take an army group insurance scheme, and while you are in service you are very well covered and probably your insurance today is very good at it. I think it is somewhere close to 1 crore now. Right, sir. And even when you retire you get an extended insurance cover which up to say 2000, it was very less. It was, I think, about 2 lakhs only. But post, I think, 2010, it has increased to 10 lakhs, which is, I think, to the age of 80 years or up to 30 years after your retirement. So this means that you even get 10 lakhs up to, say, 80 years. And that is there, but I will say that that's a very meager amount in today's terminology. So here comes the question that can you please give us a little guidance on that insurance cover required by an officer who retires as short service commission, say at 5 to 7 to 10 years of service, vis-a-vis an officer who retires takes the premature retirement, say at 40 to 45 years of age, vis-a-vis the third category of finally retiring officers at the age of 55 to 60. So there are 3 prominent age groups brackets: short service commission at 25, say, and PMR at 45, 40, 45, and finally about 55 or so. So can you just qualify what will be the requirement of each one of them and how should they go about it? Absolutely, sir. I'll do that. In fact, I have many clients from armed forces, and I've provided them solutions for their insurance planning also. So I have a small slide prepared on that. आपने कहा 3 कैटेगरी, मैं इसको 4 मान के चलूंगा. सर्विंग ऑफिसर्स भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है वो 1 करोड़ का जो AGIF वाला कवर है वो भी सफिशिएंट नहीं होता है. मान लीजिए किसी ऑफिसर ने लोन लिया हुआ है ऑलरेडी या कोई और घर में उनकी और कमिटमेंट्स हैं जो कि 1 करोड़ तो उसी में चला जाएगा. So they look at higher coverages also. तो मैं एक बार आपसे वो स्लाइड शेयर करता हूँ, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पे किस तरीके का इंश्योरेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. तो इसमें अगर आप देखेंगे मैंने मेजरली एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के बेस पे स्पेसिफिकली आर्म फोर्सेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. पहले तो सर्विंग ऑफिसर्स हो गए जिनके पास ऑलरेडी AGIF का कवर है तकरीबन 1 करोड़ के आसपास का. तो वहां पे जो नीड है वो मॉडरेट हो जाती है, डिपेंड्स ऑन दी इंडिविजुअल और दी ऑफिसर्स रिक्वायरमेंट के उनको और कवरेज की जरूरत है कि नहीं है. मेरे काफी सारे फौजी क्लाइंट्स ने एडिशनल कवरेज लिया है अलग से भी क्योंकि उनको लगता है कि 1 करोड़ AGIF वाला सफिशिएंट नहीं होगा और अगर आगे चल के कभी उन्होंने प्रीमेच्योर लिया या इफ दे प्लान टू लीव दी यूनिफॉर्म तब उनको वहां से लेना पड़ेगा. हो सकता है तब महंगा पड़े, मे बी 5, 6, 10 साल बाद. तो उन्होंने अभी से ही उसको कहीं ना कहीं फैक्टर इन करके पहले से ही ले लिया है.
तो उनकी रिक्वायरमेंट मॉडरेट है, वो लेना चाहे। So for the serving officers, the requirement is moderate. It all depends on their needs and aspirations. तो अगर उनको लगता है AGIF का कवर कम है और उनको एडिशनल कवरेज चाहिए, जो हो सकता है वो खुद डिसाइड ना कर पाए, बट हम लोग उनकी मदद कर सकते हैं ये डिसाइड करने में। तो वो हमारे से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, हम लोग उनके ऑलरेडी कवरेजेस प्लस उनकी कमिटमेंट्स और लाइबिलिटीज को देख के उनके कितने डिपेंडेंट्स हैं वो सब कैलकुलेशन करके हम उनको एग्जैक्टली बता सकते हैं कि उनको कितना और सम एश्योर्ड चाहिए या नहीं चाहिए। तो अगर चाहिए तो उनको एडिशनली वो बाहर से लेना पड़ेगा, क्योंकि AGIF उससे ज्यादा देगा नहीं। और क्या कहते हैं, सिंस उनकी लाइबिलिटीज और डिपेंडेंट्स हैं तो उनको कहीं ना कहीं वो बाहर से किसी ना किसी इंश्योरेंस कंपनी से लेना पड़ेगा। और काफी सारे ऑफिसर्स ने लिया है, मतलब मेरे पास काफी ऐसे लोग हैं, ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने अपनी एस्पिरेशंस और नीड्स के बेसिस पे इंश्योरेंस लिया है। उसके बाद कैटेगरी जो आती है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में, वो आती है शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स। मैं मान के चल रहा हूँ इनका, or we can keep it that the people at about 25 to 30 years of age, they could be short service or they could be outside also. Right sir. For them the need is very high. उनको तो सबसे पहले खरीद लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही वो यूनिफॉर्म को छोड़ते हैं तो उनका सारा जो कवरेजेस है वो चले जाते हैं, और जैसे आपने बताया सिर्फ 10 लाख का ही रह जाता है। एंड 10 lakhs इज नॉट इनफ, मतलब 10 लाख तो हो सकता है उनकी साल की सैलरी भी ना हो, उससे ज्यादा ही हो उनकी सैलरी, और उनके खर्चे भी हो सकता है उससे ज्यादा हो। तो उनको तो इमीडिएटली बाय कर लेना चाहिए जैसे ही वो ट्रांजिशन करते हैं फ्रॉम आर्मी टू, और फ्रॉम दी सर्विस टू कॉर्पोरेट, दे शुड इमीडिएटली बाय अ टर्म इंश्योरेंस। For premature, again, since their existing coverage would be not there, or if it is there, then it is very low. They should also immediately buy. तो मेरे हिसाब से तो अगर उनकी coverages नहीं है proper, तो इन दोनों categories में उनको खरीद लेना चाहिए term insurance, because बिना insurance के they would be at risk. So in case if something goes wrong, और आजकल life जो है बड़ी unpredictable हो गई है because of all these things that are happening around, these epidemics and pandemics. So it makes sense to have this as a backup. For the superannuation officers who are at almost on the verge, or who have retired, उनके लिए भी again depends on whether they have dependents or liabilities on their shoulders. अगर है तो चाहिए, otherwise नहीं चाहिए। तो उनके केस में भी मॉडरेट हो जाता है, मतलब जरूरत है तो लीजिए, नहीं है तो मत लीजिए, क्योंकि एक तो उनकी एज पे महंगा बहुत हो जाता है टर्म इंश्योरेंस। तो बिना वजह के लेना कोई सेंस नहीं है। अगर आपको लगता है अभी भी आपको अपने फैमिली को सपोर्ट करना है अगले 2 4 5 साल के लिए, तो उतने टेन्योर के लिए आप लेके उसको कभी भी बंद कर सकते हैं। मेरे को एक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दीजिए जितेंद्र, दैट आपने जैसे कहा कि जो फाइनली रिटायर्ड लोग होते हैं वो 50-55 की साल में, और उनको भी अभी लेना चाहिए, या उनकी जो एक्सटेंडेड इंश्योरेंस कवर हमारा आर्मी वाला भी नियरली 10 लाख का रह जाएगा, तो उस स्टेज में लेना ठीक होगा? या क्योंकि ये तो कॉमन नॉलेज है कि जितना यंग एज में लेंगे आप उतना अच्छा होगा, और प्रोबेबली आपका प्रीमियम बहुत कम रहेगा, तो इसके बारे में थोड़ा एलाबोरेट करें। आइडियली तो जितनी जल्दी लेंगे उतना फायदेमंद होगा, और वो मैं शेयर भी करूंगा कैसे, क्योंकि जितनी एज कम होती है प्रीमियम उतना कम होता है। बट कई बार क्या होता है ना, बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस और बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजंस आपने नहीं लिया है, तो फिर क्या कर सकते हैं, आपको बाद में जाके लगा कि यार मेरे को ना अब होना चाहिए, बिकॉज अभी भी मेरी लाइफ में कमिटमेंट्स हैं, और अगर मुझे कुछ हुआ तो वो कमिटमेंट्स फेल हो जाएंगे, या जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरी, मान लीजिए होता है ऐसा, मतलब बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं या अभी सेटल नहीं हुए हैं, उनकी सेटलमेंट और उनकी पढ़ाई का खर्चा अभी भी मेरे ऊपर है, और मुझे लगता है अगले 4 5 साल में जाके सेटल होंगे, तो ना होने से तो आज लेना भी बेटर है। मतलब मैं अगले 5 साल रिस्क पे नहीं चल सकता कि चलो ठीक है आज तक नहीं लिया तो मैं आगे भी नहीं लेता हूँ, वो ज्यादा अच्छा सिचुएशन नहीं है, बिकॉज दिस कैन बैकफायर ऑल्सो। जरूरी नहीं कि अगर आपको पहले कुछ नहीं हुआ है तो अगले 5 साल 10 साल में कुछ नहीं होगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, तो रिस्क पे चलना गलत है। तो अगर आपने पहले नहीं लिया है तो ले लेना चाहिए। तो इसका ना असेसमेंट करना पड़ता है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। तो कई बार क्या होता है, क्लाइंट की नीड्स के बेसिस पे ही हमें एनालाइज करना पड़ता है कि उनको जरूरत है या नहीं है। तो अगर जरूरत है तो आज भी लेने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर मिल जाता है तो। Can you please explain what are the various types of insurance or various types of riders? थोड़ा उसको elaborate कर सकते हैं? बिल्कुल सर, पहले हम लोग टाइप समझ लेते हैं। तो सबसे पहला तो जो टर्म प्लान होता है, और ये स्पेसिफिकली टाइप्स में आपको टर्म प्लान्स की बता रहा हूँ, पहला होता है लेवल टर्म प्लान।
सो जो हम टर्म प्लान की बात कर रहे हैं ये लेवल टर्म प्लान होता है। इसमें अगर आपने एक सम एश्योर्ड ले लिया है, आपने कवरेज ले लिया है, तो वो पूरी पॉलिसी के दौरान सेम रहता है। तो अगर आज मैंने एक 1 करोड़ की पॉलिसी ली है और उसका टर्म 20 साल है, 20 साल की पॉलिसी है, तो 20 साल तक वो 1 करोड़ ही रहेगा और जितना प्रीमियम है अगले 20 साल में उसको पे करता रहूंगा। तो दैट्स कॉल्ड लेवल टर्म प्लान। उसके बाद एक टर्म प्लान होता है जिसको कहते हैं इंक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस, जिसमें आप एक मैंडेट देते हैं कि मेरा हर साल, मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइबिलिटीज अगले कुछ सालों में बढ़ेगी, तो मैं टर्म प्लान आज ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता मेरी आगे चल के लाइबिलिटी कितनी बढ़ सकती है, तो मैं आज ही मैंडेट डाल देता हूँ कि मेरा हर साल 10% से टर्म इंश्योरेंस को इंक्रीज करो। तो आज मेरा 1 करोड़ है, तो अगले साल 10% से बढ़ के 1 करोड़ 10 लाख हो जाएगा, उसके अगले साल फिर 10% से बढ़ जाएगा। तो दैट्स कॉल्ड इंक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस। वहां पे मेरा सम एश्योर्ड हर साल इंक्रीज करता है बाय अ सर्टेन परसेंटेज विच इज डिसाइडेड एट द इनिशियल स्टेज ऑफ बाइंग द पॉलिसी। इसका ऑपोजिट होता है डिक्रीजिंग टर्म प्लान। तो अगर मुझे लगता है मेरी लाइबिलिटी रिड्यूस होगी, तो उसका उल्टा हम ले लेते हैं जिसको कहते हैं डिक्रीजिंग टर्म प्लान। तो आज अगर 1 करोड़ का लिया है, अगले साल मैं कहता हूँ 10% से रिड्यूस कर देना, तो 10% से कम होता रहेगा, मेरा प्रीमियम भी उसी हिसाब से कम होता रहेगा हर साल। तो दैट इज कॉल्ड एज डिक्रीजिंग टर्म प्लान, जिसमें कि फायदा जनरली होता है तब जब आपकी जो लाइबिलिटी है वो रिड्यूसिंग हो। तो अगर आप देखेंगे कई लोग होम लोन जब लेते हैं तो उनको एक टर्म इंश्योरेंस साथ में दिया जाता है, जो कि इसी नेचर का होता है। जैसे जैसे आपका होम लोन कम होता जाता है, आपका टर्म इंश्योरेंस भी रिड्यूस होता रहता है उस केस में। So it can be increasing at till some age and then it can be reducing at some age. Is that right? Increasing is separate, decreasing is separate. You can't have a You can't same thing combine. in a single policy. It can't You be can't. combined. तो या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। वो आपको इनिशियल जब एग्रीमेंट होता है, आप पहले ही मैंडेट देते हैं कि मुझे इंक्रीजिंग रखना है, सेम रखना है या डिक्रीजिंग रखना है। उसके बाद जो चौथा टर्म टाइप आता है वो आता है टर्म प्लान्स विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम। तो जिन टर्म प्लान्स की हम बात कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली विदाउट एनी मेच्योरिटी वैल्यू होते हैं। इनमें आपकी पॉलिसी अगर खत्म हो गई, अगर आपने 20 साल का लिया है और 20 साल तक कुछ नहीं हुआ, तो पॉलिसी खत्म हो जाती है, आपको मेच्योरिटी बेनिफिट कुछ नहीं मिलता है। बट ये जो रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाली पॉलिसीज होती है, इसमें क्या होता है, कंपनी आपके से एक एडिशनल सा प्रीमियम चार्ज करती है विच इज हायर देन दी बेसिक टर्म प्लान, और आपको पॉलिसी के एंड में मेच्योरिटी पे कुछ अमाउंट वापस कर देती है विच इज इक्विवेलेंट टू दी प्रीमियम्स दैट यू हैव पेड। तो मान लीजिए आपने 20,000 रुपए दिया 20 साल के लिए विच इज 4 लाख रुपए, तो 4 लाख रुपए के आसपास का प्लस सम रिटर्न टू द ट्यून ऑफ 3-4% वो आपको आपका पैसा वापस कर देगी। तो जिन लोगों का ये एप्रीहेंशन होता है कि ये तो कॉस्ट है, मुझे अगर कुछ नहीं हुआ तो मेरा पैसा तो डूब जाएगा, वो लोग थोड़ा सा एडिशनल प्रीमियम देके अपना प्रीमियम वापस ले लेते हैं इन दीज काइंड ऑफ रिटर्न ऑफ प्रीमियम पॉलिसीज। देन देयर इज लास्ट कैटेगरी विच इज कॉल्ड कन्वर्टिबल टर्म प्लान्स। तो इसमें भी ये बहुत इनफेमस है, ज्यादातर लोग इसकी तरफ जाते नहीं है। इसमें बेसिकली जो फीचर है वो ये है कि आप कुछ टाइम के लिए टर्म प्लान रखते हैं, कुछ सालों के लिए, और उसके बाद आप उसे किसी और पॉलिसी में कन्वर्ट कर देते हैं। इट कैन बी अ यूलिप, इट कैन बी एंडाउमेंट, इट कैन बी अ होल लाइफ पॉलिसी। तो कुछ साल तक तो टर्म प्लान की तरह चलेगा, और उस टेन्योर के खत्म होने के बाद आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी और पॉलिसी में। तो मेजरली अगर हमने बात करी ने 5 तरीके की टर्म प्लान्स के बारे में बात किया है, तो डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल्स नीड दे कैन सिलेक्ट एनी वन आउट ऑफ द 5। जो सबसे ज्यादा फेमस है वो लेवल टर्म प्लान है। उसके बाद इंक्रीजिंग वाले के लिए भी काफी लोग जाते हैं जिनको लगता है उनकी लाइबिलिटीज हर साल बढ़ेंगी। डिक्रीजिंग मैंने सिर्फ होम लोन के साथ ही अटैच करके देखा है कि होम लोन के साथ अटैच होती है, उसमें होता है। रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी फेमस है, बट अगर मैं कहूँ 100 पॉलिसियां जाती हैं टर्म की, तो 20% ही होंगी जिसमें रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला लोग चूज करते हैं। 80% पॉलिसीज आर लेवल टर्म। कुछ टिप्स शेयर करना चाहेंगे फॉर चूजिंग द राइट टाइप ऑफ द टर्म इंश्योरेंस? वो शेयर करने से पहले सर आपका एक सवाल और था, टाइप ऑफ राइडर्स। तो राइडर्स के बारे में बात कर लेते हैं। राइडर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। राइडर्स आप ऐसे कह सकते हैं कि इट्स दी आइसिंग ऑन द केक। तो आपने टर्म प्लान ले लिया, उसको और अच्छा बनाने के लिए आप उसमें राइडर्स ऐड कर सकते हैं ऑन डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स। तो अगर आपको लगता है कि ठीक है मैंने अपनी लाइफ को तो सिक्योर कर लिया है, बट उसके अलावा कुछ रिस्क और है जिसको मैं सिक्योर करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप राइडर्स ले सकते हैं। और जो सबसे एड ऑन्स, इसको एड ऑन्स भी बोलते हैं क्या?
एड ऑन्स भी बोलते हैं इनको, जो कि ओवर एंड अबव दी पॉलिसी होते हैं। तो जो आपने बेस पॉलिसी ली है उसके ऊपर ये राइडर्स को सेट किया जाता है, और ये राइडर्स जो हैं ये बेसिकली आपकी पॉलिसी को और रॉबस्ट बना देते हैं। मान लीजिए किसी को एक्सीडेंट का काफी डर रहता है, मतलब बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग होती है, बाइक से ट्रैवल करते हैं, गाड़ी से ट्रैवल करते हैं, बहुत फ्रीक्वेंट मूवमेंट होती है एक जगह से दूसरी जगह, और उनको लगता है यार मेरे को ना एक्सीडेंट के रिस्क से बचना है। तो अगर मुझे एक्सीडेंट की वजह से कुछ हो गया, और जनरली क्या देखा गया है कि एक्सीडेंट में सिर्फ डेथ ही नहीं होती है, डिसेबिलिटीज भी हो जाती हैं। तो इंसान को एक्सीडेंट होने के बाद डेथ नहीं हुई, डिसेबिलिटी हो गई, और वो आगे चल के अगर काम नहीं कर पाया, दैट्स ऑल्सो अ मेजर सेटबैक। तो उसके केस में राइडर डाल के आप अपनी पॉलिसी को और रॉबस्ट बना सकते हैं, और इस रिस्क को भी कवर कर सकते हैं। तो मैं एक एक करके ये जो 3-4 राइडर्स हैं इनको शेयर करता हूँ। सबसे पहला राइडर जो होता है, जो कि मेरे हिसाब से जरूर होना चाहिए पॉलिसी में, उसको कहते हैं वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर। सो वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर मींस, अगर मान लीजिए आपने वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर लिया है, एक तो इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है। अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं तो मुश्किल से मुझे नहीं लगता ये 500 से 1000 रुपये से ज्यादा कॉस्ट करता है किसी भी कंपनी का। तो साल में अगर आप 500-1000 रुपये देके अपने ये वाला राइडर ऐड कर लेते हैं तो बेनिफिट ये होता है, मान लीजिए क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज होती है, या एक्सीडेंट की वजह से डिसेबिलिटी हो जाती है, और आपने ये राइडर अपनी पॉलिसी में डाला हुआ है, तो आपके फ्यूचर प्रीमियम्स वेव ऑफ हो जाते हैं, तो आपको आगे चल के प्रीमियम देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर मैं इसको और सिंपल तरीके से समझाऊं, मान लीजिए किसी ने 20 साल की पॉलिसी ली, 5 साल के बाद उनका एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट में डिसेबिलिटी हो गई, और डिसेबिलिटी भी परमानेंट नेचर की, जहाँ पे उनका दोनों लिम्स, दोनों लेग्स, दोनों हाथ, कुछ भी, मतलब आई साइट कुछ भी चला गया, जिस विच अवॉइड्स हिम फॉर फ्रॉम वर्किंग इन इन फ्यूचर। तो अगर उनको आगे चल के काम नहीं मिलेगा, और वो कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम चला जाएगा, तो कंपनी कहती है आपने राइडर लिया है, हम आपकी पॉलिसी को जैसी चलाएंगे जैसे चल रही है, बट आपको आगे के फ्यूचर प्रीमियम्स देने की जरूरत नहीं है, विच इज अ वेरी गुड राइडर टू हैव, बिकॉज अगर एक्सीडेंट होता है या कोई क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस होती है और आपकी अर्निंग कैपेसिटी चली जाती है, तो आपके फ्यूचर प्रीमियम्स देने की आप पे लाइबिलिटी नहीं रहती है। तो ये होना चाहिए। उसके बाद अगर किसी को लगता है कि एक्सीडेंट एक मेजर कंसर्न हो सकता है और एक मेजर रिस्क हो सकता है, तो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर, दो राइडर आते हैं एक्सीडेंट के अंदर। एक होता है एक्सीडेंटल डेथ राइडर। तो जो डेथ राइडर है उस केस में अगर आपने मान लीजिए राइडर लिया है एक्सीडेंटल डेथ का, तो आपको आपका बेसिक सम एश्योर्ड प्लस दी एक्सीडेंटल दोनों मिला के मिलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल आपकी 1 करोड़ की पॉलिसी थी, आपने 20 लाख का एक्सीडेंटल राइडर लिया, तो टोटल सम एश्योर्ड आपका हो जाएगा 1 करोड़ प्लस 20, यानी 1 करोड़ 20 लाख, जो आपकी फैमिली को दिया जाएगा, मतलब जो भी पॉलिसी होल्डर है उनकी फैमिली को ऑन डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट। अगर किसी और रीजन से डेथ होती है, एक्सीडेंट नहीं होती, तो 1 करोड़ मिलेगा, बट अगर एक्सीडेंट की वजह से होती है तो वो 20 लाख रुपए एडिशनल मिलेगा, क्योंकि आपने उसको एज अ राइडर ऐड किया हुआ है। तीसरा राइडर जैसे मैंने पहले बताया, एक्सीडेंटल परमानेंट एंड डिसेबिलिटी राइडर। तो इसमें अगर मान लीजिए किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी होती है और आपने राइडर लिया है, तो जितने अमाउंट का, जितने सम एश्योर्ड का राइडर होगा वो आपको पे कर दिया जाएगा, वो आप अपनी ट्रीटमेंट के लिए, आगे कुछ और काम करने के लिए यूज कर सकते हैं। पॉलिसी जैसे है वैसे चलती रहेगी जब तक कि डेथ नहीं होती है, या मेच्योर, मतलब क्लोजर नहीं हो जाता है पॉलिसी का टेन्योर खत्म नहीं हो जाता है। चौथा राइडर है क्रिटिकल इलनेस राइडर। तो हर कंपनी ने अपनी एक लिस्ट ऑफ क्रिटिकल इलनेसेस डिफाइन कर रखी है, जिनको कि ऐसे नेचर का माना जाता है जहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ हाई होती है। तो किडनी फेलियर, कैंसर, देयर आर लॉट मेनी डिजीजेस व्हिच दे हैव क्लासिफाइड एज क्रिटिकल। अगर या उनमें से जिसके कोई भी करके डिजीज, या जिसके करके कस्टमर ना दे पाए, उसको हाँ हाँ, बेसिकली टू डी रिस्क हिम। एब्सोल्युटली सर। सो एनी काइंड ऑफ, उनकी ना अपनी एक लिस्ट है। तो हर कंपनी की अपनी एक लिस्ट है, किसी की 11 क्रिटिकल इलनेसेस है, किसी ने 15 कवर करी है, किसी ने 25 कवर करी है। तो एक ये भी फैक्टर है, अगर आप क्रिटिकल इलनेस राइडर ले रहे हैं तो ये जरूर चेक करें कि किसकी लिस्ट सबसे बड़ी है, कौन सबसे ज्यादा इलनेसेस को एज अ क्रिटिकल मानता है। तो अगर आपने क्रिटिकल इलनेस राइडर लिया है और उनमें से कोई भी इलनेस पॉलिसी होल्डर को डायग्नोस होती है, और डॉक्टर अपने उसमें लेटर हेड पे लिख के या अपनी रिपोर्ट में लिख के देता है कि सो एंड सो पर्सन हैज बीन डायग्नोस्ड विद दिस इलनेस, और आप वो कंपनी को देते हैं, तो कंपनी जो भी क्रिटिकल इलनेस का राइडर है, जितना आपने लिया है सम एश्योर्ड, वो आपको पे ऑफ कर देती है। दे विल नॉट वेट फॉर यू टू डाई। मतलब ऐसा नहीं कि जब डेथ होगी तभी नॉमिनी को मिलेगा। ये राइडर्स जो है वो आपको, मतलब पॉलिसी होल्डर को दिए जाते हैं, सो दैट दे कैन यूज इट फॉर देयर ओन ट्रीटमेंट, देयर ओन अदर थिंग्स विच दे वांट टू डू। लाइक मान लीजिए किसी की क्रिटिकल इलनेस हो गई या परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, और वो
अब आगे नौकरी नहीं कर सकते या कोई काम नहीं कर सकते, तो अगर वो छोटा मोटा अपना कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो उस पैसे को उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। सो दैट्स हिज और हर मनी, दे कैन यूज इट फॉर एनी पर्पज। तो ये बेसिकली 4 राइडर्स है: वेवर ऑफ प्रीमियम, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर एंड क्रिटिकल इलनेस राइडर। तो डिपेंडिंग ऑन योर नीड, अगर आपको लगता है आपकी फैमिली हिस्ट्री में क्रिटिकल इलनेसेस रही हैं आपसे पहली जनरेशन को, तो राइडर रखना अच्छी बात है, क्योंकि वो आपके रिस्क को कहीं ना कहीं मिनिमाइज कर देता है। तो सिंस आपने राइडर लिया है और क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज होती है, तो यू आर कवर्ड। या फिर आपका प्रोफेशन कुछ इस तरह से है जहां पर उस तरह का रिस्क बहुत ज्यादा है, तो राइडर्स लेना एक अच्छी चीज होगी। और अभी हमारे कुछ मिस्टर अमिताभ वाज आस्किंग इफ यू कुड जस्ट क्लैरिफाई दैट व्हाट इज द प्रीमियम, रफ प्रीमियम फॉर अ पर्टिकुलर राइडर, या परसेंटेज होगा उसका कुछ? सर ऐसा कोई परसेंटेज नहीं है, हर कंपनी का अपना अपना एक रिस्क एनालिसिस होता है, जिसको जितना ज्यादा रिस्क लगेगा जिस एज ग्रुप पे, उन्होंने उसी हिसाब से प्रीमियम डिसाइड किए होते हैं। सो अगर मैं मोटा मोटा आइडिया दूं तो जैसे मैंने बताया, वेवर ऑफ प्रीमियम जनरली कॉस्ट करता है 500 से 1000 रुपए के बीच में। तो मतलब ये मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस में आपको बता रहा हूँ कि जनरली इससे ज्यादा निकलता नहीं है इसका प्रीमियम। एक्सीडेंटल राइडर है, अगर आप उसको आपने सम एश्योर्ड का 50% तक लेते हैं या 100% तक लेते हैं, तो 2500 से 3000 का एडिशनल कॉस्ट आ जाता है। तो 2500 टू 3500। क्रिटिकल इलनेस महंगा राइडर है, ये तकरीबन 5000 से लेके 15000 तक भी कॉस्ट कर सकता है, डिपेंडिंग कि आप कितना समय शॉर्ट उसमें ले रहे हैं। तो तीनों चारों, अगर समय शॉर्ट की बात करें, वैसे तो तीनों चारों सबको जरूरत होती नहीं है मेरे हिसाब से। वेवर ऑफ प्रीमियम जरूर होना चाहिए, क्योंकि एक तो कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, 500 1000 पे इज अफोर्डेबल। मतलब कोई भी उसको अपनी पॉलिसी में, मान लीजिए मेरे को 20,000 देना है, मैं 21 दे के अपने आप को एटलीस्ट वेवर ऑफ प्रीमियम वाला बेनिफिट दे सकता हूँ। उसके बाद अगर मुझे लगता है एक्सीडेंट एक मेजर रिस्क हो सकता है, तो 2500 3000 5000 तक का प्रीमियम देके मैं अपना एक्सीडेंट भी कवर कर सकता हूँ। क्रिटिकल इलनेस मुझे एक्चुअली समझना पड़ेगा कि क्या मुझे उसकी जरूरत है। तो अगर मेरी फैमिली हिस्ट्री रही है और मुझे लगता है इस तरीके के रिस्क मुझे भी हो सकते हैं, तो लेना बनता है। अदरवाइज आप उसको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस में भी कवर कर सकते हैं, जहाँ पे कंपेरेटिवली कॉस्टिंग कम है। थोड़ा सा पर्सपेक्टिव समझने की जरूरत पड़ती है कि आप क्या चाहते हैं क्रिटिकल इलनेस राइडर से। आप पैसा लेना चाहते हैं कंपनी से, या आपके जो खर्चे हैं उनको मीटअप करना चाहते हैं। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि यार मैं अगर क्रिटिकली इल हो गया तो मेरे हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे मीट हो जाने चाहिए, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस कर सकती है। आप उसको टर्म इंश्योरेंस में मत करिए फिर, क्योंकि वो बहुत महंगा हो जाएगा, आपका प्रीमियम ऑलमोस्ट 70-80% से भी बढ़ सकता है। सो यू नीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि आपकी नीड क्या है और उसको सेटिस्फाई करने के लिए सबसे बेस्ट टू बेस्ट ऑप्शन क्या आ रहा है। तो अभी जैसे आपने एक और चीज पूछी थी कि टिप्स क्या हो सकते हैं, ऑन दिस बेसिस ऑफ टिप्स यू कैन चूज अ राइट सम एश्योर्ड फॉर योरसेल्फ एंड द राइट कंपनी। तो अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे और इनको इनके बेसिस पे डिसीजन लेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं आपके लिए सबसे सुटेबल प्रोडक्ट मिल जाएगा मार्केट में। Yeah, then you can probably then you can compare apple to apple. Probably you put your slots and then probably go for checking various this thing and then go for the best one. Yeah, absolutely sir. Whenever we take a buying decision, whether it is insurance or a mobile phone, we compare features and the benefits. तो वही इस यहाँ पे भी करना है। हर कंपनी के अपने अपने प्रोडक्ट्स होते हैं, सबके कुछ ना कुछ अच्छे अच्छे फीचर्स होते हैं, कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। तो फीचर्स और लिमिटेशंस को कंपेयर करते हुए जो मेरी नीड को सबसे ज्यादा सेटिस्फाई कर रहा है या मेरी रिक्वायरमेंट को सबसे ज्यादा मैच कर रहा है, मैं उसको बेस्ट मान के चलूंगा और उसके साथ ही अपना कॉन्फिडेंस दिखाऊंगा। तो जहां तक रही बात कि क्या चीजें हैं जो हमें कंसिडर करनी चाहिए वाइल चूजिंग अ राइट टर्म इंश्योरेंस, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और मे बी मेरे पास जो एक 1 पेजर बना हुआ है, वो भी मैं ऑडियंस के साथ शेयर कर दूंगा इन दी टेलीग्राम ग्रुप, एंड दे कैन यूज दैट एज अ reference tool while selecting a term insurance or any other insurance policy. I'll share 2 things. One, comparison of return of premium versus no return of premium. And the second slide would be tips for choosing a right term insurance. तो ये दोनों चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ऑडियंस के साथ, और आपको समझ में आएगा कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम में जाना चाहिए या विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम में जाना चाहिए। ये वाला जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, ये जो स्क्रीन देख रहे हैं, इसमें ये जो डिफरेंट प्रीमियम्स देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड दी पॉलिसी टर्म, दिस इज फॉर अ लेवल टर्म प्लान वेर इन देर इज नो रिटर्न ऑफ प्रीमियम। तो यहाँ पे आपको वापस कुछ नहीं मिलता है। आपकी पॉलिसी अगर पूरा टेन्योर चल गई, जितने साल का आपने लिया है, तो पॉलिसी खत्म हो जाएगी, आगे मिलेगा कुछ नहीं। तो दिस इज द बेसिक टर्म प्लान।
तो इसमें मैंने डिफरेंट एज ग्रुप्स को लिया है, 1 करोड़ का कवरेज है, टिल दी एज ऑफ 60 तक कवरेज दिया है, क्योंकि जनरली 60 की एज तक आते आते जब आप रिटायर होते हैं तब तक आपकी सोशल कमिटमेंट्स और लाइबिलिटी सब मीटअप हो जाती है। तो जनरली सजेशन ये होता है कि कम से कम 60 साल जब तक आप काम करें तब तक आपका कवरेज होना चाहिए। तो 20 साल की एज पे अगर आप 40 साल की पॉलिसी लेते हैं 1 करोड़ की, तो वो कॉस्ट करती है 10,724 रुपए, विच इज 27 रुपीज पर डे, 29 रुपीज पर डे। If the same policy is taken by someone who's 35 for 25 years, it costs 17,251. तो एकदम से आप देखेंगे जैसे जैसे एज बढ़ रही है उस हिसाब से आपका टेन्योर तो कम हो रहा है, क्योंकि 60 साल में समय कम बच जाता है, बट आपका प्रीमियम बढ़ रहा है। फॉर समवन हु इज 50, 10 years to go for 60 एज, 39,000 का प्रीमियम आ जाता है। So this is for the no return of premium policy. Now I'll share the other slide, which is with the return of premium. I'll increase the size. Okay. So this is with the return of premium. Same age group, same tenure. यहाँ पे आप जो लास्ट कॉलम देख रहे हैं वो एडिशनल है, यानी मेच्योरिटी। पॉलिसी खत्म हो जाएगी तो ये पैसा एडिशनल मिलेगा, मतलब ये मेच्योरिटी पे मिलेगा। तो आपने 20 साल की एज पे लिया, 40 साल की पॉलिसी ली, 1 करोड़ का कवर लिया, तो 16,881 रुपए, जहां आप पहले विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम में 10,000 दे देते हैं, यहाँ आपको 6,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। वो 6,000 एक्स्ट्रा देने से बेनिफिट आपको सिर्फ ये हो रहा है कि आपको 6 लाख, मतलब मोटा मोटा 6.75 लाख रुपए, 6.78 लाख रुपीज मेच्योरिटी पे आपको वापस मिल जाता है। ये भी आपके लिए तब बेनिफिशियल है जब आप इसको कम एज पे लेते हैं। अगर आप देखेंगे 45 की एज पे, फॉर दैट 1 CR कवर विच यू वर बाइंग एट रफली अराउंड 25-30,000 रुपीज, यहाँ पे 1,20,000 रुपये देना पड़ रहा है सिर्फ एक मेच्योरिटी के लिए 18 लाख की। So that additional amount that you're paying, almost 1 lakh of rupees, is only to get this maturity. So for me, if I have to buy an insurance for myself and I have obviously bought it, मैं तो बिना रिटर्न ऑफ प्रीमियम के लिए जाऊंगा, और जो एडिशनल अमाउंट है उसको अलग से इन्वेस्ट करूंगा। ये वो मेरा, दैट मेक्स मोर सेंस फॉर मी, rather than giving it to the company and then they investing it somewhere and giving me a maturity. तो मेरा ये मानना है, और इनफैक्ट मैं अपने क्लाइंट्स को भी यही सजेस्ट करता हूँ कि आप बेसिक सम एश्योर्ड लो, टर्म प्लान लो, रिटर्न ऑफ प्रीमियम की तरफ मत जाओ, क्योंकि रिटर्न ऑफ प्रीमियम में आपका बेनिफिट नहीं होगा, उल्टा अगर आप देखेंगे तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे नुकसान ही होता है। बाकी इट्स ऑल अबाउट अ पर्सन्स नीड। अगर उनको लगता है नहीं मैं मतलब अपना पैसा वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, मेरे को रिटर्न चाहिए, तो फिर आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम पॉलिसीज में जा सकते हैं। Now, these are certain tips which I would love to share with the audience while choosing a right term insurance. तो ये अगर आप फैक्टर्स को कहीं ना कहीं कंसिडर करते हैं तो आप एक ज़्यादा सेंसिबल और ज़्यादा एक फ्रूटफुल डिसीजन ले सकते हैं टर्म इंश्योरेंस खरीदने का। इसको एक एक करके मैं जल्दी से शेयर कर देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहला है कंसिडर योर लाइफ स्टेज एंड डिपेंडेंट्स। तो सबसे पहले ये देखिए कि आप आज की डेट में आपका लाइफ स्टेज क्या है, आप किस स्टेज पे हैं, आप सिंगल हैं, आप मैरिड हैं, आप मैरिड हैं विद ड्यूल इनकम, विद किड्स, आर यू इन द एज ग्रुप ऑफ 40-45 और मे बी हायर। तो पहले देखिए आपका लाइफ स्टेज क्या है, आपके बच्चों की और आपकी रिक्वायरमेंट्स आज की डेट में क्या है, और आपके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके इमीडिएट फैमिली है। उसके बेसिस पे डिसाइड करिए कि आपको कितना टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। थोड़ा सा मुश्किल होता है एग्जैक्ट अमाउंट पता करना, बट अगर आप ये चीजें कंसिडर करेंगे अपनी लाइफ स्टेज और नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, तो कहीं ना कहीं आप उस नंबर तक पहुंच सकते हैं जो क्लोज टू हो सकता है टू दी अमाउंट दैट यू नीड एज टर्म इंश्योरेंस। अपने लाइफस्टाइल को जरूर असेस करें। अगर आपको लगता है कि आप हर साल या आपकी फैमिली जो है वो हर महीने एक सर्टेन अमाउंट स्पेंड करती है, तो जब आप लाइफ इंश्योरेंस खरीदने का सोचे टर्म इंश्योरेंस का, तो इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि लाइफस्टाइल में चेंज ना हो। मतलब जो लाइफस्टाइल आज मेंटेन हो रही है वो आप हो या ना हो मेंटेन होती रहे। तो अगर ₹1,00,000 महीने का खर्चा है तो आगे चल के भी ₹1,00,000 महीने का खर्चा सस्टेन करे फैमिली। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सेक्रीफाइस करने पे आ जाए क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, और जहां ₹1,00,000 खर्च कर रहे थे वहां पे 20,000 में घर चलाना पड़े आगे चल के। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं असेस करिए कि आपकी लाइफस्टाइल क्या है, तो उसके बेसिस पे आपको हेल्प मिलेगी ये समझने में कि सम एश्योर्ड कितना होना चाहिए। अपनी इनकम को असेस करिए, और इनकम के बेसिस पे आपको ये पता चल सकता है कि आप सम एश्योर्ड कितना लेना चाहिए। एक थंब रूल है जो ये कहता है कि 10 to 15 टाइम्स आपकी एनुअल इनकम का होना चाहिए। तो
अगर किसी की इनकम है 10 लाख रुपए साल का, तो अगर 10 टाइम्स ले तो 1 करोड़ का कवरेज तो उनके पास होना चाहिए कम से कम, एंड इट कैन गो अप टू 1.5 CR। तो अगर 1 करोड़ से 1.5 करोड़ का कवरेज वो लेके रखते हैं तो कहीं ना कहीं सिक्योर्ड है उनकी फाइनेंशियल लाइफ। अपनी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज को उसमें ऐड करके चले, तो अगर आपका कोई लोन है, होम लोन हो सकता है, कार लोन हो सकता है, कोई बड़ा पर्सनल लोन भी हो सकता है, कोई एसेट लोन भी हो सकता है, तो उसको भी इसमें इंक्लूड करें। ऐसा ना करें कि इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं और अपनी लाइबिलिटीज का असेसमेंट नहीं किया है और सिर्फ अपनी फ्यूचर एस्पिरेशंस को ही ऐड करके आपने सम एश्योर्ड निकाल लिया, और पता चला आप नहीं हुए तो सारा पैसा तो होम लोन वाली कंपनी ले गई और फैमिली के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो लाइबिलिटीज को भी कैलकुलेट करके अपने टोटल सम एश्योर्ड में पार्ट बनाएं, और तब जाके असेस करें कि आपको सम एश्योर्ड कितना चाहिए। सम एश्योर्ड डिसाइड हो गया तो राइडर भी जरूर देखें कि आपके लिए कौन सा राइडर इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या आपको वेवर ऑफ प्रीमियम डालना चाहिए, या क्रिटिकल इलनेस राइडर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या एक्सीडेंटल डेथ राइडर हो सकता है, उसको भी असेस करें। बिना उसके अगर आपने प्लान लिया है और कहीं ना कहीं इनको नजरअंदाज किया है तो आपको बैकफायर कर सकता है ये। तो मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ, डिसेबिलिटी हो गई, डेथ नहीं हुई, और आगे चल के कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी आई कि नौकरी या काम करने की नहीं रही पॉसिबिलिटी, तो आपके लिए फिर सारी प्लानिंग हेवाय हो जाएगी। तो आपको कहीं ना कहीं राइडर्स को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। जब आप ये चीजें अपने लेवल पे अंडरस्टैंड कर ले तो कंपनी को डिसाइड करते टाइम सबसे पहले देखिए उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है। तो जितने क्लेम उसको हर साल मिल रहे हैं उसमें से कितना वो इंटेंट कर रही है देने के लिए, पे कितना कर रही है। तो अगर उनको 100 क्लेम आ रहे हैं और 100 में से वो 95-96% को पे ऑफ कर रहे हैं, विच मीन्स दे हैव द गुड इंटेंट टू पे ऑफ देयर क्लेम्स। तो ऐसी कंपनीज के साथ जाना चाहिए जिनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो साल दर साल 95%, 96% से ऊपर हो, मतलब कम से कम रिजेक्शन हो। जिनका रिजेक्शन रेशियो ज्यादा होगा उनका कहीं ना कहीं इंटरनली प्रॉब्लम होगा फॉर दी सेटलमेंट। तो हो सकता है आपने उनसे सस्ता समझ के तो ले लिया, बट आगे चल के क्लेम आपको मिला ही नहीं, आपकी फैमिली को नहीं मिला। तो ऐसे सिचुएशन में नहीं आने के लिए क्लेम सेटलमेंट रेशियो एक इंपॉर्टेंट नंबर है। और इसको कहीं से मत चेक करिए, इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है IRDA जो अपनी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करती है, उसके अंदर बहुत क्लियरली मेंशन करती है सारी कंपनीज का क्लेम सेटलमेंट रेशियो। वहां से चेक करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ वेबसाइट्स सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स को ग्लोरीफाई करने के लिए उनकी क्लेम सेटलमेंट रेशियो को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेती हैं। तो उस मैनिपुलेशन से बचने के लिए आप इसको IRDA के रेफरेंस से लीजिए, किसी और प्राइवेट वेबसाइट से नहीं। द सेकेंड लास्ट टिप इज टू लुक एट द सॉल्वेंसी रेशियो। अब जनरली हम लोग मतलब जब भी हम एक डिसीजन लेते हैं टू बाय अ टर्म इंश्योरेंस, हम लोग क्लेम सेटलमेंट रेशियो और प्रीमियम देखते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो देखना जरूरी है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि कंपनी के पास इतनी एसेट्स हैं भी कि वो अपनी लाइबिलिटी को पे कर सके। सो सॉल्वेंसी रेशियो इज बेसिकली द मार्जिन दैट द कंपनी हैज टू मेंटेन। IRDA की गाइडलाइंस के हिसाब से इनको कम से कम 1.5 टाइम्स और 150%, 1.5 टाइम्स और 150% एक कैपिटल सेट असाइड करके रखना पड़ता है टू सेटल देयर क्लेम्स ओवर एंड अबव दी लाइबिलिटीज दैट दे हैव। तो इससे ये पता चलता है कि अगर कोई कंपनी के पास अच्छा सॉल्वेंसी रेशियो है, अ हायर सॉल्वेंसी रेशियो मींस अ बेटर कैपेसिटी टू पे देयर क्लेम्स। तो अगर कोई कंपनी है जो कि नहीं है, जिसका सॉल्वेंसी रेशियो कम है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो दिवालिया हो जाए कंपनी आगे चल के और आपको क्लेम मिले ही नहीं। तो हमें कहीं ना कहीं एक अच्छी कंपनी को देखने के लिए उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो के साथ उसका सॉल्वेंसी रेशियो भी देखना जरूरी है, जो कि IRDA की गाइडलाइंस जो आती हैं, एनुअल रिपोर्ट जो आती है उसके अंदर पब्लिश होता है ऐसा। सबसे लास्ट में आता है प्रीमियम। हम लोग जनरली उल्टा चलते हैं, हम लोग सबसे पहले प्रीमियम देखते हैं, उसके बाद बाकी फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं, और कई बार करते भी नहीं है। मेरे हिसाब से प्रीमियम सबसे लास्ट में आना चाहिए, जब मैंने बाकी चीजों को चेक कर लिया है कि मेरे को जरूरत कितनी है सम एश्योर्ड की, मेरी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज कितनी है, मुझे राइडर की जरूरत है कि नहीं है। उसके बाद जब मैं कंपनीज पे आऊं तब मुझे उनके प्रीमियम्स कंपेयर करने चाहिए, रादर देन सबसे पहले प्रीमियम देखा और उसके बाद बाय किया। क्योंकि हर बार सस्ता जो होता है वो अच्छा नहीं होता है। तो कई बार आप सस्ते के चक्कर में ऐसी कंपनी से पॉलिसी ले सकते हैं जो हो सकता है आगे चल के क्लेम ही सेटल ना करे, या फिर क्लेम सेटल करना चाहे तो उसका रिजर्व ही इतना नहीं है कि वो क्लेम्स को सेटल कर पाए, दिवालिया ही हो जाए, पता चला बिकी गई वो कंपनी, इतना उनके ऊपर क्लेम आ गया। तो उन सब चीजों से बचने के लिए आपको कहीं ना कहीं इन फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए तब एक अच्छी टर्म इंश्योरेंस को चूज करना चाहिए। मेरे हिसाब से प्रीमियम सबसे लास्ट में आता है। तब आप देखिए कि जो
4 या 5 या 6 कंपनीज आपने आउटलाइन करी है, उनमें से सबसे फेयर वैल्यू कौन से कंपनी का आ रहा है, किसका प्रीमियम सबसे फेयर है, मतलब जस्टिफाइड है, ऐसा नहीं कि बहुत महंगा भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ऐसा लग रहा है कि अच्छा फीचर्स है सब कुछ है बट क्या कहते हैं सब कुछ है उसके साथ बट प्रीमियम बहुत हाई चार्ज कर रहा है, जो कि मैंने कुछ कंपनीज के साथ देखा है, उनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं बट प्रीमियम वो मार्केट से ऑलमोस्ट 20% 25% ज्यादा चार्ज करते हैं, जो कि जस्टिफाइड नहीं है। मतलब थोड़ा बहुत वेरिएशन चलता है, शुड बी फेयर। कितनी वैल्यू एडिशन है और कितना उनका प्रीमियम का इंक्रीज है, ये दोनों को बैलेंस करके चलना होगा। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। सो ऐसा भी नहीं हो सकता कि सिमिलर प्रोडक्ट, सिमिलर सर्विसेज, सिमिलर फीचर्स कोई और कंपनी 100 रुपए में दे रही है, मैं उसके लिए 150 रुपए खर्च कर रहा हूँ किसी और कंपनी के साथ, तो इतना अनजस्टिफाइड प्रीमियम नहीं होना चाहिए। 10-15% का वेरिएशन है, समझ में आता है, कुछ एडिशनल फीचर्स मिल रहे हैं, कुछ एडिशनल एडवांटेजेस मिल रही है, आता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा क्लेम सेटलमेंट रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, ये दो इंपॉर्टेंट रेशियो थे जो चेक करनी चाहिए। अब कोई कंपनी है जिसका ये दोनों बहुत अच्छा है बट उनका प्रीमियम मार्केट से 150% ज्यादा है या 100% ज्यादा है, तो मैं इतना ज्यादा मतलब कॉस्ट नहीं लूंगा अपने सर के ऊपर कि अच्छा इनकी ये दो रेशियोज अच्छे हैं तो मैं 100 की जगह 200 रुपए में चीज खरीद लूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। लुकिंग एट ऑल अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो, कॉस्ट इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर।